Hello students, this is your second tutorial video of 3 questions, a story by Leo Tolstoy. In the last video, we learned that the king had 3 questions. Raja ने 3 questions रखे. According to the king, 3 questions he would never fail in his life. राजा को लगता था अगर उनके पास 3 क्वेश्चंस का जवाब होगा वो जिंदगी में भी फेल नहीं होंगे. These 3 questions were: What is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही वक्त क्या है? Whom should he listen to? उनको किन लोगों की बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? The king declared a great reward for whoever will give a satisfactory answer to his questions. King ने एक बहुत ही बड़ा इनाम डिक्लेयर किया था उनके लिए जो भी उनका आंसर satisfactorily दे पाएंगे. People from all kingdoms far and wide came to answer the king's questions. उनके सवालों का जवाब देने wise men दूर दराज के kingdoms से आए. But all of them failed. In the last video, I had asked all of you another question. What do failure and success mean, according to you? मैंने पूछा था कि failure और success का क्या meaning है आपके according. Now, I want you all to answer a few questions. Do these people look successful? इन लोगों को देखिए क्या आपको लगता है कि ये लोग सक्सेसफुल हैं? Does this person look successful? Does this person look successful? What about this person? And this person? So, I want you all to think about it. And as it happened in my class, most of the people when they saw these people, उन्होंने बोला these people look successful. This person doesn't look successful according to my class. This person looked successful to everyone. This person did not, and this person didn't either. Now let's learn who are these people. This is Masafumi. He is a world famous hermit. He has been living alone on an island since 1989. He left civilization long ago. मासाफुमी की एक नॉर्मल लाइफ थी, वो भी हम सब की तरह सोसाइटी में रहता था. बट 1989 में वो एक आइलैंड पे गए और उसके बाद उन्होंने सिविलाइजेशन यानी कि हमारे जैसे सोसाइटीज़ में रहना बिल्कुल बंद कर दिया. नाउ ही लिव्स इन हार्मनी विद नेचर ऑन हिज आइलैंड अलोन. अब वो नेचर के साथ बिल्कुल हार्मनी में एक आइलैंड पे अकेले रहते हैं. दिस इज एमा ऑरबैक. शी इज 58 years old. She has shunned society, living in a round hut she built herself. वो अकेली रहती हैं एक मड हट में. एमा ऑरबैक is an Oxford graduate. She has named her home स्पिरिट लैंड. एमा ऑरबैक ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हुई हैं और उन्होंने अपने घर का नाम स्पिरिट लैंड रखा है. शी हैज़ बैंड ऑल टेक्नोलॉजी इन हर हाउस. उन्होंने अपने घर में बिल्कुल टेक्नोलॉजी बैन कर रखी है. शी फेचेस वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम. वो एक नदी से पानी लाती है एंड कीप्स 3 goats, 7 chickens एंड 2 horses. और वो इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं जानवरों के साथ सस्टेन करती हैं. This is Brendan Grimshaw. He was a newspaper for the Brendan Grimshaw ने मोइन आइलैंड खरीदा 1960s में. He lived alone on it and grew 16,000 trees single-handedly. वो उस आइलैंड पे अकेले रहने लगे और उन्होंने 16,000 पेड़ अकेले रह के वहाँ पे उगाए. He fiercely fought a legal battle against a local hotel
company which wanted to convert the island into a resort. उसके बाद उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली एक लीगल बैटल कोर्ट में लड़ा अगेंस्ट अ होटल जो उस आइलैंड को एक रिजॉर्ट में बदलना चाहती थी. He turned the island into a national park in 2008. ब्रेंडन ग्रिमशॉ की मेहनत और उनकी लड़ाई से फाइनली ये आइलैंड एक नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ 2008 में. ऑल ऑफ दीज पीपल आर फेमस हर्मिट्स. ये सभी लोग बहुत ही फेमस हर्मिट्स हैं. हर्मिट्स आर पीपल हु चूज टू लिव इन सॉलिट्यूड और अलोन. हर्मिट्स वो लोग होते हैं जो चूज करते हैं ऐसी लाइफ जहाँ पे वो अकेले कहीं दूर दराज की जगहों पे रहते हैं. अवे फ्रॉम सोसाइटी से बहुत ही दूर. मोस्ट हर्मिट्स बिलीव इन लिविंग इन हार्मनी विद नेचर. ज़्यादातर हर्मिट्स नेचर के साथ हार्मनी में रहने में बिलीव करते हैं. एंड ऑल ऑफ देम फेल्ड. हु फेल्ड? ऑल द पीपल, ऑल द वाइज मैन failed to answer the king's questions. In the end, who succeeded? In the story, finally, the king decides to meet a famous wise hermit. अब हमारी स्टोरी में क्या हुआ था? फाइनली जब सारे वाइज मैन आंसर देने में फेल हो गए थे, किंग ने डिसाइड किया कि वो एक फेमस हर्मिट से मिलेंगे who lived in the woods, जो कि उन एक जंगल में रहते. Hermit only met simple people, so the king wears ordinary clothes. क्योंकि hermit सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था, इसलिए king को कॉमन लोगों जैसे फाइनली hermit ने सक्सेसफुली king के क्वेश्चंस का आंसर दिया. He says, the most important time is now. हर्मिट ने कहा सबसे ज़रूरी वक्त अभी है. यानी कि जिस भी मोमेंट में आप हो, प्रेजेंट मोमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज पास्ट इज़ समथिंग वी कैन नॉट चेंज एंड फ्यूचर इज़ समथिंग वी कैन नॉट सी. इसलिए प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज वी हैव सम कंट्रोल ओवर इट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल आर whosoever वी आर विद एट एनी मोमेंट. सबसे ज़रूरी लोग वो होते हैं जिनके भी साथ हम किसी भी मोमेंट में हो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी काइंड टू दोज अराउंड अस. सबसे ज़रूरी काम है कि हम जो भी लोग हमारे आसपास हैं उनको काइंडली ट्रीट करें, उनकी हेल्प करें और उनके साथ रहें. थैंक यू. विद दिस हम लोगों ने चैप्टर की समरी पढ़ी. आप लोगों को कोई भी डाउट्स हों तो आप लोग मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.